अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। कैसे हैं आप सब? पढ़ रहे हैं आई होप। आई एम फाइजा नदीम, योर इंग्लिश टीचर। ऑलरेडी हमने एक यूनिट आपके साथ कर लिया है, यूनिट नंबर 7, और आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8। व्हाट इज यूनिट नंबर 8 ऑल अबाउट? लेट्स गो टू द बोर्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। आई होप कि आपने लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी इंग्लिश की बुक अपने पास रख ली होगी पेंसिल के साथ। अगर नहीं रखी तो जल्दी से जाइए, पेंसिल लेके आइए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको प्ले कीजिए और मेरे साथ साथ यूनिट नंबर 8 पढ़िए। यूनिट नंबर 8 is on page 91 to page 100. The name of this unit is Peace. It's about a poem which is written by Dr. Hartman. ठीक है? What the poem is all about? The poem is all about the destructions and the pleasures brought by water. ठीक है? Water is used symbolically as to describe all the problems, hardships and happiness that we come across in our life. कैसे? जब मैं पोएम एक्सप्लेन करूंगी तो साथ बाय साथ आपको समझाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लास 9-10 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? 9-10 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसलेशंस। सो सबसे पहले मैं आपके लिए वर्ड्स की ट्रांसलेशंस लाई हूँ। आई होप आपके पास पेंसिल होगी क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ। जब तक मैं बोलूंगी इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स और योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है? वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशंस जो पोएम में मौजूद हैं। ठीक है? विंड तेज हवा, रोरिंग दहाड़ती हुई, स्मैशिंग तबाहकुन, मॉन्स्टर बला या इफ्रियत, डिस्ट्रक्शन तबाही, रेकिंग काम को तबाह करने वाली, वैलीज वादियां, वेल्स घाटियां, स्पिनिंग घुमाते हुए, ब्रोकन टूटा हुआ, फ्लाइंग उड़ाते हुए, कोर असल, सेंटर दरमियान, इटर्नल दायमी। ठीक है? ये कुछ ट्रांसलेशंस थी जो इस बोर्ड पे है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड एंड लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ द ट्रांसलेशंस। इफ यू हैव नॉट कॉपीड देम डाउन with me, I would want you to pause the lecture, copy them down by the time I move on to the next board. I hope आपने पिछली सारी translations note down कर ली होंगी. Let's move on to the rest of the translations that were left. Stillness खामोशी, gentle मध्यम, whispers सरगोशियां, far away बहुत दूर, unimportant गैर अहम। ये थी अल्फाज की ट्रांसलेशंस। अब मैं आपको पोएम रीड करूंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी, साथ के साथ उसको लिखते जाइए क्योंकि वो आपकी पैराफ्रेजिंग है ऑफ ईच पैराग्राफ। ठीक है? तो आई विल रीड द पोएम फॉर यू नाउ। The wind is now a roaring, smashing monster of destruction, raking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. Alright, so this is the first stanza of the poem, which is describing how destructive strong winds can be. Strong winds can be tornadoes, strong winds can be twisters, and then they can break down everything that is man-made. Not even man-made, but they can uproot all the trees. So they can bring a huge destruction to the world. Alright? So the poet over here is saying that the wind over here is in a destructive mood, is in an angry mood, and it's bringing all sort of troubles to the human beings. This is the first stanza. Let's move on to the next stanza, the second one. But all of that is not its core. But all of that, it's not the wind's nature.
right? Over here in this line, the poet is saying that destructing or destruction is not the wind's nature. Its center is in truth, eternal stillness. Eternal stillness, eternal means ever living, हमेशा रहने वाली, something that does not have any end, ठीक है? So its nature is eternal stillness. The nature, the core nature, the real nature of wind is stillness, calm, serenity. Bright blue skies and all you hear are gentle whispers. Alright, so the eternal stillness of winds bring bright blue skies and you can hear the whispers. When the wind moves, if you are going for an early morning walk, right? You hear the wind moving through trees, you hear the rustling of the leaves, ठीक है? तो ये है wind की absolute nature कि वो calm है, serene है, सकून में है, and you can hear only the rustling, the movement, ठीक है? Far away and unimportant. जब wind अपने सकून में है, when the wind is serene, when the wind is comfortable, when the wind is calm, we do not give a lot of importance to it. Those who live in Punjab would know the so-called आंधी कम. जब आंधी आती है तो क्या होता है? The wind is in an aggressive mood. सब तबाह बर्बाद हो जाता है, सारा घर मिट्टी से भर जाता है, छतें गिर जाती हैं, दरख्त अपरूट हो जाते. तो वो आंधी जो है वो कभी साल के 2 महीनों में ही आती है, मानसून में. इट्स नॉट द एंटायर ईयर. क्या पूरा साल हम विंड को नोटिस करते हैं कि व्हाट इज द मूड ऑफ द विंड नाउ? If we will take it to the wider aspects of life, if we will understand the meaning of the poem in a wider aspect of life, we will come to know that the problems occur only for a little time in our life. And the happiness that follow those problems are eternal, ever living. We must be brave and strong to face those problems in our life, right? And we must not give up in front of those problems, but we must work hard, be calm, be comfortable like wind and face those problems. ठीक है, मैंने आपको पैराफ्रेजिंग कर दी दोनों पैराग्राफ्स की. अगर नहीं आया है, कुछ भी आपका मिस हुआ है, तो इसको पॉज करें, गो बैक करें और कॉपी डाउन करें. मीनवाइल मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली आपकी बुक में है, आफ्टर द पोएम इज दिस सिनोनिम. They have given you these words and they have asked you to write the synonyms. Actually, these are not the synonyms, these are the explanations. But then the author or the question or the book asks you to write this. इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे इनको लिख दिया है, इनको अपनी कॉपी डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में. What does roaring means? Roaring means extremely noisy. ठीक है? Roaring is extremely noisy. What does smashing means? Smashing means to be broken violently and noisily into pieces. Remember, the word smashing is used in the poem. It is basically describing the aggression of the wind, right? What does raking means? Raking means to make something level by using a rake. करते ना आप इस तरह से, ठीक है? Rake, जमीन को level करते हैं, ठीक है? That is raking. What does spinning means? Spinning means to make something turn rapidly round and round at a central point. Spinning, ठीक है? So it's turning rapidly. I'm not doing it rapidly, but then rapid turning to a central point. ठीक है? What does eternal means? Everlasting, right? What does whispering means? To speak or say something in such a low voice that only the person who is sitting next to you can hear it, but nobody else. How many of you whispers in your classroom? And how many of you get caught? Do not whisper in the classroom, okay? Be attentive. Pay attention towards what your teacher is saying. Alright? Copy them down while I move on to the next board.
Alright, on page number 93, your question is all about connotations. So what are connotations? Connotations are actually those words that invoke, build up, जगाना जिसको कहते हैं आपके अंदर एक फीलिंग को. ठीक है, अगर दो वर्ड्स हैं जिनकी सेम मीनिंग्स है, उनमें से कौन सा वर्ड जो है वो आपको उसकी रादर पॉजिटिव मीनिंग को जगा रहा है या रादर नेगेटिव मीनिंग को जगा रहा है, तो वो कौन सा वर्ड है जो ज़्यादा पॉजिटिव है उन दोनों में से, या वो कौन सा वर्ड है जो ज़्यादा नेगेटिव है उन दोनों में से, इफ़ यू हैव टू सिनोनिम्स, राइट. तो कॉनोटेशंस उन अल्फाज को कहते हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग्स होती हैं लेकिन उनके डिग्रीज होती हैं पॉजिटिविटी की या डिग्रीज होती हैं नेगेटिविटी की. आपका क्वेश्चन नंबर 93 आपसे ये कहता है कि मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया है, इसमें से जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसको आपने सर्कल करना है. ठीक है, उनमें से एक थ्रिफ्टी और एक पेनी पिंचिंग है. पेनी पिंचिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली माइजर, थ्रिफ्टी का मतलब होता है सोच समझ के खर्चने वाला. तो थ्रिफ्टी इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू पेनी पिंचिंग. देन पुशी एंड अग्रेसिव. पुशी होता है जो आपको ना मेंटली टॉर्चर करके किसी काम के लिए पुश करे. अग्रेसिव वो होता है जो फॉर द टाइम बीइंग गुस्सा करता है और उसके बाद ठीक हो जाता है. तो अग्रेसिव इज मोर positive. And then a politician and a statesman. A politician can perform hypocrisy, but a statesman never does hypocrisy, although both of them have their styles. So statesman is what we were looking for as a positive meaning for these two words. Chef or cook. Obviously chef is a professional person, right? Or he knows better than a cook. I am a cook, but I can never act as a chef, right? Slender or skinny. Slender is thin but smart. Skinny is very thin, right? So slender is smart and thin. This is a more positive word as compared to skinny. Let's move on to exercise D on page number 93. I hope you have opened the books. I hope you are holding a pencil, right? So on page number 93 is an MCQ. And you have to pick the right answer. Which you would rather be called? You would rather be called a thrifty or cheap. ठीक है, तो आप thrifty कहलाना पसंद करेंगे क्योंकि thrifty वो पर्सन हो जाए सेंसिबली पैसे खर्चता है. ठीक है, you would not like to be called as cheap. Likewise, which is more polite? Sipping a drink या gulping it down. मेरे ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता तमीज से sip करना is more polite. ठीक है, let's move on to the next board. जल्दी से, because I want to finish this off. Alright, next is which is more serious. Problem serious है या disaster serious है? Disaster. ठीक है, फिर which would you be if you had not eaten for several days? 5 दिन से आपने खाना नहीं खाया तो आप simple plain hungry होंगे या आप starve कर रहे होंगे? Obviously, you would be starving. ठीक है, last question. Which you would be after walking in the mud? मट्टी में टाप कीचड़ गंदा मट्टी में आप वॉक करके आ रहे हैं तो would you be simple plain dirty या filthy? और मैंने क्या किया है, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है. आंसर आपका filthy है, dirty नहीं है. ठीक है, आंसर आपका filthy है. You would not be dirty बट यू वुड बी फिल्दी. ठीक है, डर्टी तो हल्की सी कपड़ों पे मट्टी पड़ जाएगी ना तो आप डर्टी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मट्टी में टापो टाप वॉक करके आ रहे हैं तो बेटा फिर आप डर्टी नहीं है, आप फिल्दी हो गए. ठीक है, बड़ा ही फेमस एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है. दाग तो अच्छे होते लेकिन मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रही. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ई ऑन पेज नंबर 94. इट्स अबाउट ईडियम्स. आपको ईडियम्स दिए हुए हैं और आपको कहा हुआ है कि इनकी उर्दू ट्रांसलेशन करें. अब ईडियम्स क्या होते हैं? मुहावरात. उर्दू में करते हो मुहावरात, उनकी ट्रांसलेशन करते हो, उनके जुमले बनाते हो. इस स्टेज में इनको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, लेकिन व्हाट इफ दिस ईडियम इज गिवन एज अ ट्रांसलेशन लाइन. ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन लाइन में ये ईडियम दे दिए गए तो आप क्या करेंगे? इसीलिए मैंने ये सारे ईडियम्स आपके लिए ट्रांसलेट कर दिए हैं. ठीक है, सबसे पहला इडियम आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, और इसकी ट्रांसलेशन क्या है? आसमान से गिरा खजूर में अटका.
ठीक है. सेकेंड इज idiom is it's no use crying over spilt milk. It's no use crying over spilt milk. ठीक है. अगर हम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ये होगी कि दूध गिर गया तो अब रोने का कोई फायदा नहीं. ठीक है. लेकिन इसकी जो करेक्ट मुहावरा है, जो करेक्ट मुहावरा उर्दू में इसके साथ इसका काउंटर एक्ट है, इसका फ्रेंड है, बल्कि इसके साथ इसका पार्टनर है, वो ये है कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत. इंग्लिश में है कि इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, और उर्दू में है इट्स अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत. ठीक है. थर्ड इडियम है डोंट पुट ऑफ टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. ठीक है. और उर्दू में है आज का काम कल पर मत छोड़ो. नेक्स्ट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. ठीक है. और इसका उर्दू में है आंख ओझल पहाड़ ओझल. लास्ट मुहावरा, दैट इज लास्ट idiom in your book is as you sow so shall you reap. As you sow so shall you reap. ठीक है. इसका एक तो आप ये भी कर सकते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और इसका दूसरा भी होगा जैसा करोगे वैसा भरोगे. ठीक है. जैसा बोओगे वैसा काटोगे और जैसा करोगे वैसा भरोगे, दोनों आर करेक्ट फॉर दिस idiom. ये 5 idioms, इनके उर्दू मुहावरे मैंने आपको बता दिए हैं. आप अपनी बुक के पेज नंबर 94 पे इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कॉपी डाउन कीजिए और इसकी ट्रांसलेशंस लिखिए. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, याद करनी है बेटा. इसमें से कुछ भी अगर पेपर पे आ गया तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत कुछ है. हम आराम से ग्रेजुअली अगर अब मेरे लेक्चर्स के साथ साथ ही याद करते रहेंगे, वी विल बी एबल टू गिव आवर एग्जाम प्रॉपरली. ठीक है. क्या किया हमने आज, क्विक रिकैप कर लें. हमने पोएम पढ़ी पीस, हमने पहले उसकी वर्ड ट्रांसलेशन की, फिर हमने उसकी पैराफ्रेजिंग की, अंडरस्टैंड किया, फिर हमने उसके एंटोनिम्स किए, फिर हमने ईडियम्स किए और हमने कॉनोटेशंस की. ठीक है. हमने आज ये सब कुछ कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे इस पोएम की समरी और क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जितना काम आज कराया है उसको याद कर लीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. अल्लाह हाफिज.